Welcome you, Prashant, and good evening. Please introduce yourself. My full name is Prashant Venkateshwaran Menon. I have completed my graduation from IHM Mumbai, Dadar, Okay, and now I'm currently studying HR, my PGDM diploma in Wellington. okay. Very good. And myself, Himanshu Agarwal, and now I am a MIS trainer. Okay, since 5 years. So today our topic will be tally. Okay, so you know what is tally, and today will be introduction section. Okay. So first Okay, of sir. all, I'm introduced Tally RP9. Okay. So first of all, you tell me what is the account? Basic knowledge. I'm checking you. Uh, Sir, account is basically seeing where you Hello, have. Prashant, speak loudly, dear, because your voice is very slow now. Okay, Speak loudly. Okay. sir. Okay, 1 minute. I'll close the door. Sir, uh, accounts is the book which we see that how much we have invested, how much we are getting returns, and means how much is our expenses, and how much we are means getting tally means uh, getting the same budget, Okay. same amount in Okay. Okay. asset and liability side means Okay. how much expenses and returns we are getting. Okay, very good, Prashant. And Tally is a basically you have joined a Tally course. Okay, Tally is a basically accounting software. Okay, it is a accounting software. One second, one member are also joining this Okay, sir. time. No, no, no. So, shall I? Do I need a book or Yeah, pencil to write? yeah. Hello, 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 Jovin. Hello, Jovin. Hello, Jovin. Hello, Jovin. Hello, Jovin. I'm audible to you. Yes, sir. Okay, please on your video. Hello, Jovin. Yes, sir. Okay. So first, welcome you and good evening. First of all, Good introduce evening, sir. myself. Myself Himanshu Agarwal, and I'm a MIS trainer since 5 years. So which Yes, course sir. you have joined, Jovin? For advanced Excel and Tally. Okay, and introduce yourself. Oh, Sir, my name is Joven Joseph, and I've completed my MCOM recently. okay, And I was searching for jobs, and so I wanted to okay, learn these okay, skills before okay, starting my. okay. Very good, very good. Okay, so since you have joining Tally, right? So today Yes, will sir. be introduction lecture. Okay, today will be intro lecture for basic accounting. Okay. So first of all, Yes, sir. there are two students will be joining, Prashant and Jobin. Okay. So first of all, good evening everyone. So let's introduce what is the accounting. Okay. So basically, accounting we are comfortable English and Hindi both language I'm speaking. Okay. तो Okay, sir. व्हाट इज द अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होता है ठीक है सबसे पहले आपको इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे कि बेसिकली अकाउंट्स क्या होता है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ Yes, ऑल अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी एनी आइडिया yes. हाँ प्लीज टेल मी व्हाट इज अकाउंट्स Sir, accounting is like the process of recording the financial transactions of a organization. ओके so Yes, sir. let's see first of all I will share my screen uh, screen will be visible now hello Yes, sir. It is loading. Yeah. okay. So let's see. Today will be one second. One second. So basically today will be intro lecture. Basically accounts क्या होता है? Accounts मतलब क्या होता है? इट इज अ डेली ट्रांजेक्शन ठीक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपका
अकाउंट्स है, ठीक है. व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट्स इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस टू डे ट्रांजेक्शन, ठीक है. अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि आपका एक बिजनेस है, आप उस बिजनेस में एक अकाउंटेंट हो, आप उसको सिस्टमेटिक मेंटेन करना, ठीक है, सिस्टमेटिकली मेंटेन करना डे टू डे ट्रांजेक्शंस. ओके, दैट इज कॉल्ड अकाउंट. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस. ओके, so today first of all you tell me what how many types of accounts? How many types of accounts? Cost accounting, No. Please tell me how many types of and what is the core branches of accounting? Prashant, you have any idea? Debit account, credit account, like sir, like this. Okay, Oh, let's see. normal. Let's see. Is screen will be visible now, na? yes sir. Okay, so Personal account. first of all, let's see a definition of Tally ERP9. Okay, Tally is a accounting software. Tally is a accounting software. We have maintain a computerized accounting. We have to maintain a computerized accounting. Okay, so Tally is a accounting software. Tally is developed by Tally Solution Private Limited. Tally, who is the developing a Tally? Which company? That is a Tally Solution. Okay, the latest version of Tally, that is the Enterprises Resources Planning with Prime. Okay, what is the ERP? ERP is the Enterprises Resources Planning. What is ERP? Enterprises Resources Planning. And 9 is a version. 9 is a version. Okay. So basically today our session will be basic accounting. Okay. So there are three types of account. There are three types of account. It is a base of accounting. Okay. First of all, there are three types of account: personal accounts, real account, and nominal account. Okay, personal, real, and nominal. Okay, so first of all, you tell me what is a personal accounts. Robin, you have any idea? And Prashant, please tell me what is the meaning of personal accounts. So personal account is that account which is ourself, means which is our account. Like in our bank there is account for ourselves, uh, not for the company. Like Okay, very good. means, buy anything, buy and take or sell anything, the money comes in your account. That is a personal account. Okay, so very good. What is a personal account? Personal account that represent a person of any organization. What is a personal account? It's self accounts. Okay, which represent a person and organization. Which account that name should become and support that any trust name support Siddhivinayak Trust. Okay, Sai Baba Siddhi Trust. It is a trust account. Okay, and specific organization name. Okay, for example, Aptech accounts and SBI account, JCD account. That is a personal account. You having a bank passbook. Okay, this is your personal account. You have to maintain your personal. Okay, that is your personal account. Personal accounts represent a person and organization. That is a personal account. Okay, if you have any doubt, please ask me. No sir. Okay, Prashant, you have any doubt? No, sir. Okay, let me continue. Yes, sir. Okay, so please next will be real account. So first of all, you tell me what is a real accounts. What is a real I account? mean, Robin, you it also is tell me a, what is the real accounts. sir, assets means like furniture and machineries and But goodwill, what is cash. what is the meaning of real accounts? You have telling an example, okay? But what is a real Yes, sir. accounts? Robin, please tell me. Sir, Any idea? I know you are already study in 12th standard, okay, and graduation, yes sir. okay. So please tell me your answer. What is the real accounts? Sir, an account that is used to purchase assets um, Okay, let me tell you. in the Let me. company. Okay. Very good for try this answer. So first of all, what is the real accounts? Okay, the real account represent assets. First of all, tell me what is the meaning of assets. Prashant and Asset Robin, means, what is the meaning of assets? asset means which we own, like furniture and machinery, uh, which which is owned by us and is used as Okay, a daily purpose product, like uh, okay. So there are two types of Tangible assets. and good. Okay, there are two types of assets: fixed assets and current assets. Okay, fixed asset will be building. It cannot remove one place to another place. Okay, and yes, sir. okay, this is a fixed asset, and current asset will be
for example, big example for your cash. Okay, cash will be current assets. Okay, तो सीरीज रियल अकाउंट्स रिप्रेजेंट एसेट्स, रियल अकाउंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मशीनरी अकाउंट्स है, फर्नीचर अकाउंट्स है, कैश है, गुडविल है। ठीक है, दिस इज योर रियल अकाउंट्स। ओके, दिस इज योर रियल अकाउंट्स। ओके, तो पर्सनल रियल। ओके, पर्सनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट, एंड रियल अकाउंट रिप्रेजेंट अ एसेट्स। ओके, this is your very important golden rule. Okay, this is a totally based on Tally, is a computerizing accounting software. Okay, it is a totally basic, okay, basic knowledge. Okay, next will be nominal accounts. First of all, what is a nominal accounts? A nominal accounts which represent a income or expenses. Nominal accounts which represent a income and expenses. It is a nominal accounts. For example, salary accounts, interest received accounts, commission paid accounts. दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो दिस अकाउंटिंग रूल होता है। अकाउंट के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, आपको उसको रूल्स को क्या करना होता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आपके अकाउंटिंग में क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, यू कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस का Okay, please bifurcation tell me, don't worry. If wrong, please tell me, don't worry. Prashant, what is the balance sheet? Sir, same the answer what you told. Okay, see, okay, very good for trying this answer. Let me tell you, what is the balance sheet? Suppose that your company should be Prashant Private Limited. Okay, your one company will be Prashant Private Limited. Okay, I am a shareholder of this company. Okay, Prashant is telling now, sir, please purchase my shares. Okay, तो मुझे प्रशांत की कंपनी पे क्या करना है, उसको मतलब उनका शेयर होल्डर बनना है। ठीक है, तो मुझे कुछ तो ट्रस्ट चाहिए ना, कल जाके अगर प्रशांत मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत, ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रशांत का ट्रस्ट, मुझे प्रशांत को क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि प्रशांत प्लीज शो मी योर बैलेंस शीट। ओके, मुझे क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट टू शोइंग अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, As liabilities and assets. ओके, देयर आर Yes. टू साइड्स। मुझे प्रशांत का क्या देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा कि प्रशांत की कंपनी के पास कितना लाइबिलिटी है और कितना एसेट्स है। Assets. तो मैं क्या करूंगा, ट्रस्ट करूंगा। ओके, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट टू शोइंग अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको, कुछ डाउट है यहाँ तक? No, जॉब No, sir. इफ यू एनी No, डाउट, sir. ओके, कंटिन्यू। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, गोल्डन रूल है। क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। ओके, ये रूल के मुताबिक आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। अगर आप ये रूल के खिलाफ जाते हो तो आपका अकाउंट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अकाउंट्स क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको गलत। रूल के खिलाफ नहीं जाना है। ठीक है, दिस इज योर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। ओके, दिस इज योर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डेबिटर रिसीवर एंड क्रेडिटर गिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज अ डेबिट एंड व्हाट इज अ गिवर। डेबिटर रिसीवर क्रेडिटर गिवर मतलब क्या होता है? Sir, debit means example, I am purchasing something. Debit, I am paying to Amazon Okay. some payment of my product. So Very good, very debit good. means it is going to Amazon, Okay. the purchaser, and Okay. credit means if I am getting any refund, they are sending back to my account. Okay, okay, very good, very good. Next will be real accounts. Okay, real accounts, what is the rule of real accounts? Let's see. Debit what comes in and credit what goes out. For example, if you purchase any assets, okay, so if you purchase any assets, debit what comes in, assets will be come in, and credit what goes out, cash what goes out. Okay, any assets you having purchase, okay, so आपको फ्री में मिलने वाला है क्या, वो नहीं ना, आपको Yes. क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट इज अ बेसिक अकाउंटिंग, दैट इज अ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी और कैश अपने पास Machinery to चला bank. जाएगा। ओके, दैट इज अ To bank. रूल ऑफ रियल अकाउंट, दैट इज अ रूल ऑफ रियल अकाउंट। यहाँ तो Real कोई डाउट account. है आपको? No, sir. ओके, कंटिन्यू।
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट विल बी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट विल बी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ओके, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बताइए मुझे, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट? सर सैलरी अकाउंट जो होता है ओके हमारा, ओके तो उसमें जब सैलरी रिसीव होता है तो वो हमारा इनकम होता है, ओके और जब हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें से डिडक्ट होता है, तो वो ओके एक्सपेंसेस होता है। ओके, वेरी गुड। तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है और ओके इनकम क्रेडिट। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट इनकम और एक्सपेंसेस, दैट इज द इनकम और एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट द इनकम और एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। अभी देखो, नॉमिनल अकाउंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। हैज पर बैंकिंग फॉलोइंग अ नॉमिनल अकाउंट। अभी आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको एक मोबाइल पे मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? सो एंड सो अमाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, तो मतलब क्या हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डिडक्ट लॉसेस। आपके लिए क्या हो गया? वो लॉस हो गया ना, आपने पैसा क्या किया? विड्रॉ किया, आपने मनी क्या किया? विड्रॉ किया। ओके, जब आप बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो आपको मैसेज क्या आता है? सो एंड सो अमाउंट में क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। ओके, आपके यहाँ तक पासबुक जब आप एंट्री करते हो तो वहां पर क्या होता है? जब आप पैसा विड्रॉ डिपॉजिट करते हो तो वहां पर क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब पैसा आप विड्रॉ करते हो तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। ठीक है, हैज पर बैंकिंग कंपनी एक्ट following a nominal account, debit all expenses and losses, and credit all gain and income. Okay, so basically, Prashant and Jobin, there are three types of account: personal, real, and nominal. Okay, फास्ट हो रहा है क्या, या समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है। फास्ट नहीं हो रहा है ना? नहीं Yes. सर। ओके, कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास पूछिए, ठीक है। ओके, हाँ सर। आपको ये तो पता है डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये तो बेसिक है, हमने ये ऑलरेडी ये सब मतलब एजुकेशन टाइम में हमने सीखा हुआ है ना। है नेक्स्ट सर, क्या थोड़ा है? याद, क्या बोल रहे हो प्रशांत? सर थोड़ा याद नहीं है, ओके, याद जो नहीं है। ओके ओके 12th में पढ़ा था। ओके ओके ओके, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, सन्डी क्रेडिटर क्या होता है? द पर्सन टू whom I pay some amount of money in future, that is a creditor. ओके, और डेटर क्या होता है? द पर्सन फ्रॉम whom I pay collect some amount. ओके, ये क्या होता है? कलेक्ट करने वाला, वो देने वाला होता है। ओके, क्रेडिटर मतलब गिवन, ओके, डेटर मतलब कलेक्ट। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस का। क्या बात करते हैं? एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस? Sir, expenses means our expenses, बोलिए बोलिए, our हाँ बोलिए, राइट है, बोलिए। spendings, sir. Spendings like ओके normal things on ओके food, ओके clothing, ओके, और and there are types of expenses also, sir. Direct and okay, so see this, there are two types of expenses: direct expenses and indirect expenses. There are two types of expenses: direct expenses or indirect expenses. What is the direct expenses? The direct expenses which are related to factory and manufacturing. Okay, direct expenses which are related to factory and manufacturing and production, that will be direct expenses. For example, wages, freight charges, carriage account. Okay, this is your direct expenses. For example, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में एक प्लांट होती है, ठीक है, कंपनी में क्या होता है? एक प्लांट होता है। सपोजेड एक क्लोथ का कंपनी है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? मशीनरीज होती है, ठीक है, और क्लोथ क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, उसको फिनिश गुड्स बनने के लिए क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से क्या होता है? गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक क्लोथ है, वॉशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, बाद में कलरिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, बाद में उसका प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है, ऐसा बहुत सारे उसको प्रोसेस से क्या होता है? गुजरना पड़ता है। तो एक क्या होता है? क्लोथ बनता है, फिनिश गुड्स होता है, ठीक है। फाइनली वो मार्केट में तब लॉन्च होता है जब वो फिनिश गुड्स बनता है तब। तो जो वो क्लोथ बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं वो प्रशांत? डायरेक्ट direct एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। expenses. व्हाट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? Sir, it's like the process means direct expense में जो process है, sir. Direct expense is final product, ना sir, right? The Yeah, indirect expenses means using of electricity, water, and yeah, material. very good, very good.
What is the indirect expenses? The indirect expenses here related to office and administration. वो expenses जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होता है, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होता है, उस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री में लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, ओके। लेकिन कंपनी में जो ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलता है। क्या मिलता है उनको? सैलरी मिलता है, ओके। हाँ, यहाँ तो कोई डाउट है आपको? नो सर। एनी डाउट? नो सर। अभी आपको कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे आप पूछिए, बोलिए क्या डाउट है अभी यहाँ तक। ये जो मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। या कुछ आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर। ओके, तो टैली बेसिकली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओके। तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। What is the real account? The real account represent the assets. Okay, real account represent the assets. For example, what is the rule of real account? Debit or what comes in, credit was goes out. It will goes. Yeah. And what is the nominal account? Nominal account Nominal represent the account is debit all income and expenses and credit all income and losses. yeah, very good, very good. Okay. तो मैं आपको बताता हूँ अभी टैली जो सॉफ्टवेयर है उसे हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। हाउ टू डाउनलोड दिस टैली सॉफ्टवेयर, ओके। आपके पास टैली सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी या नहीं है पीसी में? नहीं है सर। प्रशांत, आपके पास? नहीं सर। ओके, so let's see how to download this tally software. और go to Google, आपको गूगल पे जाना है। go to Google टैली ERP9 डाउनलोड, ओके। इसको हमें क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखो ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो फर्स्ट लिंक है ना? हाँ, फर्स्ट लिंक पर आपके पास जो भी विंडो रहेगा उस विंडो का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास विंडोज 7 है, 32 बिट, ओके। तो मैं यहाँ पर 32 बिट पे जाऊंगा, ओके। ओके। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर टैली ERP9 आ गया। आपको जस्ट इस डाउनलोड पे क्या करना है? क्लिक करना है। क्या करना है? डाउनलोड पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी मेरे पास कैसा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ओके। तो आपको इस जस्ट डाउनलोड लिंक पे क्या करना है? क्लिक करना और इंस्टॉल कर लेना, ओके। आया समझ में? हाँ सर। ओके सर। अभी करना है? हाँ, अभी नहीं, आप कल लेक्चर होगा ना तो करके रखना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ओके सर। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ सर। यस सर।
ये कुछ सर अंडर ये सब नोट्स अवेलेबल रहेगा ना? हाँ, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके अभी देखिए, अभी हम लोग क्या देखते हैं, अंडर ग्रुप देखते हैं, क्या देखते हैं, अंडर ग्रुप्स, क्या देखते हैं, अंडर ग्रुप, ओके। हाँ, और मुझे पूछना था आप लोगों से, डियर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग तो ईयर क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या होता है वो? सर 31 मार्च लगा, 31 मार्च। सर ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना इनकम गेन्स हुआ, चेक होता है सर एज अ ओके इन प्राइवेट सेक्टर और मोस्टली इन प्राइवेट सेक्टर है सर, ओके कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ओके। फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, दिस इज माय अकाउंटिंग यस ईयर। सर। ये क्या होता है, मेरा अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सपोज दैट, अभी आप ध्यान में रखो, टैली में कितने टाइप के मोड होते हैं? दो टाइप के मोड होते हैं। कितने टाइप के मोड होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड। फर्स्ट इज एजुकेशन मोड एंड प्रोफेशनल मोड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड? देयर आर टू टाइप्स, प्रोफेशनल मोड एंड एजुकेशन मोड, ओके। अभी प्रोफेशनल मोड क्या होता है, एजुकेशन मोड में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। देखो, हम जो सीखने वाले हैं वो किस मोड पे सीखने वाले हैं? एजुकेशन मोड पे सीखने वाले। किस मोड पे सीखने वाले हम लोग? एजुकेशन एजुकेशन। मोड पे सीखने वाले। किस मोड पे? एजुकेशन मोड में, ओके। तो अभी आप बोलेंगे कि सर प्रोफेशनल मोड में क्या होता है? प्रोफेशनल मोड में आप करंट डेट क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। करंट डेट क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। और एजुकेशन मोड में क्या होता है, हम लोग करंट डेट हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। करंट डेट जो होता है हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, ओके। अभी फॉर एग्जांपल, आपने आज गुड परचेस किया है, तो मैं आपको आज का डेट का क्या दूंगा? इनवाइस दूंगा ना, बराबर ना। तो अभी हाँ सर। प्रोफेशनल मोड में हम लोग, वो क्या होता है, लाइसेंस परचेस होता है। लाइसेंस क्या होता है? परचेस होता है, ठीक है। और वो मल्टी यूजर होता है। क्या होता है वो? मल्टी यूजर होता है, ओके। और जो एजुकेशन मोड होता है वो क्या होता है? सिंगल यूजर होता है। क्या होता है वो? सिंगल यूजर। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए, प्रोफेशनल मोड में हम लोग करंट डेट चेंज कर सकते हैं और एजुकेशन मोड में डेट चेंज नहीं होता है। इतना ही डिफरेंस है प्रोफेशनल मोड और एजुकेशन मोड में। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। प्रशांत, जो भी, यहाँ तो कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, तो लेट्स सी कैपिटल अकाउंट्स, ओके। अभी हम लोग देखते हैं अंडर ग्रुप। क्या देखते हैं? अंडर ग्रुप। अभी ये अंडर ग्रुप कुछ आपको 48 अंडर ग्रुप से ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे आपका पूरा का पूरा क्या है, लेजर क्रिएशन का टॉपिक है। क्या है? लेजर क्रिएशन का क्या है, टैली में टॉपिक है, ओके। हाँ, लेजर क्रिएशन का इसके ऊपर ही पूरा क्या है, टॉपिक है। जैसे कि सपोज दैट, अभी मुझे बताइए कि लेजर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी लेजर सर, मतलब वो डिफरेंट सेक्शन रहता है सर, क्या होता है? डिफरेंट सेक्शंस लाइक डिफरेंट सेक्शन। ओके, और बताइए सर रॉबिन, हाँ सर। और तो बताइए लेजर क्या होता है? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब पार्ट बैलेंस शीट, इनकम इनकम स्टेटमेंट का ये होता है ना। ओके, मतलब अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। लेजर इज अ लिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर इज अ लिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो कैपिटल किसके अंडर आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। बैंक ऑफ इंडिया किसके अंडर आएगा? बैंक अकाउंट के अंडर आएगा। यस सर। हाँ, कैश, कैश इन हैंड। इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स एसेट है। फर्नीचर क्या है? फिक्स एसेट है। मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट्स है। एडवांस टू स्टाफ क्या है? लोन एंड एडवांस है। रेंट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो ये आपको पूरा का पूरा 48 जो अंडर ग्रुप से ये आपको क्या करने पड़ेंगे, ये लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपका अंडर ग्रुप रॉन्ग हो जाता है, अगर आपका अंडर ग्रुप रॉन्ग हो जाता है, तो आपका पूरा अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। पूरा अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में आपको ये अंडर ग्रुप क्या करना है, लर्न करना है, ओके। अभी आप क्या करो पता है, आप इसका पहले पिक निकाल लो। मोबाइल है अभी आपके पास? सर हाँ, लैपटॉप पे कर रहा हूँ। तो इसका आप पिक निकाल सकते हो। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको नोटबुक में ये पूरा लिखना है, ठीक है। हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ, वैसे मैं आपको ये शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, ठीक है। पूरा नोट्स दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ सर। करूँ मैं ऊपर?
हाँ सर। ओके, हो गया। नहीं, कर रहा हूँ सर। ओके, हाँ सर, स्क्रॉल कीजिए। हाँ, one- ये वाला नीचे कर लेना। ओके, हाँ सर। सर ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना है। हाँ इसका भी निकाल लो, ये नोटबुक में आप लिख लेना। सर ये लेजर मतलब अपना डिफरेंट सेक्शंस रहता है ना, राइट सर? जैसे कि या अगर अपना फिक्स एसेट तो सब रहेगा, फिर उसको अलग अलग कंपार्टमेंट जैसा बनाने के, फिक्स एसेट एक कंपार्टमेंट, फिर अपना इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस, फिर उसको कन्वर्ट करने का रहता है ना सर बैलेंस शीट में, एसेट या एंड लायबिलिटी साइड, या फिर टैली। ओके, ओके ओके ओके, तो यहाँ तक हो गया 18 तक। हाँ सर। yes, sir. 19 से ले लो अभी। मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन अभी आप इसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है? हो गया। कर Yes, रहा sir. हूँ। हाँ सर। यहाँ तक ले लो और डन। So, 1 minute. यस सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ तक ही क्या होता है, एंड होता है। आज हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है? अभी जब हम Okay, लोग कल मिलेंगे, कल मैं आपको कंपनी क्रिएशन बताऊंगा। तब तक आप आपके पीसी में टैली सॉफ्टवेयर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इशू आएगा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? हाँ और सर। okay, आपको ये क्या करना है, पहले एक नोटबुक बनाना है और 200 पेजेस का। इसमें सारे के सारे क्या करना है आपको, ये जो आज मैंने आपको बताया है वो पूरा आपको राइट डाउन करना है। ओके, okay, वो sir. डाउट है यस तो सर। आप मुझे कल पूछ सकते हो। कल मैं आपको सेम टाइम पे मिलूंगा 6 o'clock। ओके, 6 to ओके सर। 7। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है? अभी मेरे पास 7 मिनट्स रिमेनिंग है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर वो कितना पेजेस का बुक बनाना है? 200 पेजेस? 200 पेजेस का बुक बना लीजिए, 100, ठीक है? ओके। हाँ, उसमें कैसा है कि आपको जो भी मैं नोट्स दूंगा वो आपको उसमें रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि जब अभी कैसा है डियर, ये ऑनलाइन लेक्चर है। ओके, तो आप जब रिटर्न करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? मैं वैसे चाहूंगा तो पीडीएफ में आपको भेज सकता हूँ, लेकिन आपको खुद का एक नोट्स प्रिपेयर करना है। खुद का क्या करना है, एक नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा और प्लस में थ्योरी भी आपका स्ट्रांग होगा। ओके, ओके, सर ये कितने मंथ्स का कोर्स होता है? बेसिकली देखिए, टैली विद जीएसटी आपका है, ठीक है? तो टैली विद जीएसटी मिनिमम आपका 2 से 2.5 मंथ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 मंथ में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है?
क्योंकि कैसे है, अभी हमारा वीकली में 3 डेज ही लेक्चर है। ओके, तो Okay. ट्राई करूंगा 3 मंथ में आपका पूरा ये टैली विद जीएसटी, क्योंकि आपका कैसा एडवांस है। ओके, आपका जीएसटी भी है ना या बेसिक है? Sir, advance, sir. एडवांस है ना? Advance Excel plus Tally and GST. आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया जो अभी? सिर्फ टैली किया मेरा या? एडवांस्ड एक्सेल एंड टैली ओके दोनों है। ओके, आपका परेशान सेम है? Same, sir. Advance Tally and GST. ओके, अभी आप लोग वर्किंग हो या मतलब कैसे स्टूडेंट हो? Sir, student है. ओके ओके करंटली आई एम अनएम्प्लॉयड सर। ओके ओके, डोंट वरी, हो जाओगे एम्प्लॉय, ठीक है। तो अभी कैसा पैंडेमिक सिचुएशन है। ओके, तो अभी कैसे है कि हमें लर्न एंड अर्न भी करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप कैसे, आपको स्किल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन आपको आज के डेट में कैसा है, कॉम्प्यूटराइज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए अपने पास एक स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पर सेशन एंड करूंगा अभी, ठीक है। तो हैव अ गुड डे। ओके सर, ओके, थैंक so यू meet सर, you tomorrow on same time. Okay, थैंक have यू a सर, good day. Bye bye. सेम टू यू सर।